Parsi food is completely different from the North Indian or South Indian food. We are a home away from home. 12 years back, my mother-in-law and I had started this venture. उनके साथ रह के I have learned the trick of the trade. This restaurant's name is King's Persian Bistro. Okay. We specialize in Parsi and Persian food only. So guys, I am in Parsi restaurant. So I'm just enjoying the Parsi food. This is Sali Paneer, which is marvelous, and this is Dhansak veg Dhansak dal, and we eat it with rice. Actually, I am vegetarian, so I took this. But if you are non-vegetarian, there is a lot of varieties here. You can come down and you can enjoy the Parsi food, which is very rarest because in India it is not. आपको सब जगह नहीं मिलता है ये. You have to visit across various places. So this is the right place where you will get the Parsi fantastic food. So I am just enjoying the food. Nice. So guys, we have very good and excellent Parsi food. But अगर हम Parsi food की बात करें, without dessert it is nothing. So we are eating right now Leganu Parsi custard. Leganu custard जो कि पारसी फूड के बाद सर्व किया जाता है. तो मुझे भी ये सर्व किया गया है. मैं जैसे बता रहा था कि मैं वेजिटेरियन हूँ, इसमें थोड़ा सा अंडा है, लेकिन फिर भी मैं लेट्स ट्राई. इट्स गुड वन. इट्स ऑसम. आपने कहा कि जैसे इसके नाम में भी पर्शियन है, तो आपके रेस्टोरेंट की क्या खासियत है? व्हाई इट्स डिफरेंट फ्रॉम अदर? Because we cook Parsi food, and in Pune there are only 2 or 3 restaurants which cook Parsi food, and Parsi food is completely different from the North Indian or South Indian food. We specialize, our main dishes are patrani machhi, dhansak, sali margi. आपने धनसक का, ये धनसक वर्ड बड़ा कैची वर्ड है, हमने काफी सुना भी Yes. है. मैंने आज फर्स्ट टाइम Yes. दाल भी खाया. तो ये नाम का क्या हिस्ट्री है और क्यों बोलते हैं इसको? Dhan is the rice, Okay. and sak is the dal. दाल. So you have to have this as a combination of rice, dal. It's a complete meal, dhansak. So that is why we name it as dhansak. तो धनसक में सिर्फ वेजिटेरियन फूड रहता है या नॉन वेज भी? नहीं, नॉन वेज भी रहता है. We cook the dal with the chicken and mutton. So उसमें वो फ्लेवर अंदर जाता है. Okay. Yeah. मैम, अगर हम वैरायटी ऑफ फूड की बात करें तो जैसे आपने कहा कि यहाँ पे 2-3 रेस्टोरेंट ही हैं पुणे में. Yeah. तो आपकी स्पेशलिटी क्या है? लोग क्यों आते हैं? Why you are different? Main is we are a home away from home. Okay. Whenever people come here, they feel we are it's a very homely place. प्लस हाइजीन मेंटेन होता है. एंड हम लोग का एक चेलो कबाब इज वेरी फेमस. इट्स अ पर्शियन डिश. हाँ, वो चेलो कबाब एंड पात्रानी मच्छी खाने के लिए जगह जगह से आते हैं. इनफैक्ट चेलो कबाब पार्सल करके दुबई भी गया है एंड दिल्ली भी गया है. या मैम, विद द पैसेज ऑफ टाइम वी हैव सीन कि कुछ डिशेस, कुछ फूड्स विद द पैसेज ऑफ टाइम ऑब्सोलीट हो रहे हैं, उनको बनाने वाले नहीं रहे, या उनको जो उनकी रेसिपी है मिस करते जा रहे हैं. तो आप उन चीजों को कैसे मेंटेन करते हैं? कौन शेफ है, कहाँ से आते हैं, कैसे? Actually 12 years back, my mother-in-law and I had started this venture. Okay. Now my mother-in-law is a keen Parsi cook. She expired last year. तो उनके साथ रह के I have learned the trick of the trade. And जो मम्मी की दादी सब कुक करती थी, वही मसालाज, वही सब चीज कंटिन्यू हो रहा है. इनफैक्ट द धनसक का मसाला एंड ऑल्सो आई डोंट बाय लोकली. आई मेक इट अकॉर्डिंग टू मम्मीज ग्रैंडमदर्स रेसिपी. हाँ. तो कितना चैलेंजिंग होता है ये फूड बनाना? इज इट इजी? नो, इट्स अ वेरी टफ जॉब.
because see, you cannot leave this when you are running a restaurant. You can't just leave it on the staff. You continuously have to have monitoring, seeing whether the right quantity is put, the right amount of masala is put, उसको भूनना कितना देरी है, ओवर कुक भी नहीं करना है, अंडर कुक भी नहीं करना है. ओके, तो जिस तरह के जो हम फूड्स की बात करते हैं, अगर आप वैरायटी ऑफ फूड की बात कर रहे हैं, क्योंकि इंडिया में अलग अलग वैरायटीज़ का फूड मिलता है, ऐसा कोई स्पेशल फूड जिसको खाने के लिए, जैसे आपने कहा दुबई जाते हैं, मतलब लोग अक्रॉस द मुंबई, पुणे या बाहर से भी आते हैं इसको स्पेशली? Yes, I have lots of people, those who are going towards Mahabaleshwar, they come, have a stop here, have lunch here and then proceed to Mahabaleshwar. के क्वींस के लिए बहुत सुना है, तो चलो आज यहाँ एक वेंचर करें. ओके मैम, हमने देखा जैसे हम पुणे में विजिट भी कर रहे हैं, यहाँ कुछ चीज़ें बड़ी रियल, जैसे क्यानी बेकरी हो गया और आपका रेस्टोरेंट, तो क्या आपको लगता है कि जो एक टेस्ट होता है उसको मेंटेन करना, उसको कंसिस्टेंटली रखना कितना बड़ा चैलेंज है? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट्स सबसे बड़ा चैलेंज वही है कि एक कंसिस्टेंसी रहना चाहिए इन ऑल योर डिशेस. आज तीखा हुआ तो कल थोड़ा कम तीखा हुआ, वैसा नहीं होता है. तो वी हैव एवरीथिंग पुट अकॉर्डिंग टू मेजरमेंट्स. या और मैम अगर हम बात करें, अभी लोगों को कम पता है, अपनी अवेयरनेस के लिए आप कैसे करते हैं? वी आर ऑन फेसबुक, वी आर ऑन इंस्टाग्राम, एंड वी ऑल्सो डू twice a year we do food festival on our Parsi New Year and Irani New Year. So we put paper ad. ओके, मैं जैसे अभी आप बात कर रहे थे वो क्या था, तो और जो आपका फूड फेस्टिवल होता है उसमें क्या शोकेस करते हैं? फूड फेस्टिवल में हम लोग ओनली पारसी फूड ही फोकस करते हैं एंड पीपल कम, माने यहाँ इतना लाइन हो जाता है टू ईट पारसी फूड. तो दैट इज व्हाई वी डू इट ट्वाइस अ ईयर, so that people come to know and they get different Parsi cuisines to taste. और मैम अगर हम डेजर्ट की बात करें, आई हैव हर्ड कि पारसी खाना without dessert is incomplete. Yeah. तो उसमें क्या क्या रहता है? So ये लगन्नू कस्टर्ड जो है, it is like 10 liters of milk is burnt to 5 liters condensed. उसके बाद उसमें सब इंग्रेडिएंट्स डाला जाता है, शुगर, सेमोलिना, ऑल द एसेंसेस, ड्राई फ्रूट्स, एंड देन विद एग इट इज बेक्ड. मैम मेरा एक क्वेश्चन था, जैसे हमने जब फूड खाया, हमने देखा कि आपने एक ड्रिंक सर्व किया व्हिच इज एंटायरली डिफरेंट. आई हैव सीन द डेट 8084. Yes. So what is this? This is a Parsi drink which is usually served on our tables during Parsi weddings. We have banana leaf. We serve food on the banana leaf. So ये एक पारसी ड्रिंक है. ये बहुत पुराना टाइम से चलते आ रहा है. First they used to make at home these, with essence and colors, and now it's a small Parsi factory which delivers to all the restaurants, Parsi and Persian restaurants. What is the name of this? Adeshars. Yeah. So it's in variety of flavor. Yes, it has many flavors, and the raspberry is the most commonly liked flavor. Okay. तो मैम जिस तरह से आजकल एक कल्चर चला है, ऑनलाइन सारा फूड जाता है, तो आपका फूड भी ऑनलाइन Yes. Swiggy, Zomato, we are on Swiggy, Zomato, Dial a Meal. Okay. Yeah, all over Pune. All over Pune. बाहर से भी लोग आते हैं. बाहर से लोग आते हैं. In fact, some people who come and stay here, Pune, and if they are going to Bombay, they come one day in advance and they tell me कि मेरे को ये चीज़ सब cool करके देना, so I prepare it, cool it, freezer में डालती हूँ, and then people carry the food. अहमदनगर जाता है, बॉम्बे जाता है, बहुत जगह जाता है. मेरा लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि जब हम कोई काम करते हैं उसका एक अपना एक्सपीरियंस होता है. हाँ. ऐसा कोई मोमेंट जो आपको बहुत टच कर गया हो, कभी किसी ने कुछ ऐसा बोला हो कि मैं यहाँ से आया था, इतना मुझे लगा बचपन की याद आ गई इस खाने की, ऐसा कोई किस्सा है आपके? एक इंसिडेंट, डू यू नो द former cricketer Farokh engineer. Now he is in London.
So whenever he is completely fond of Parsi food. So whenever he is in Pune for any of his this, उसका ताज से फोन आता है कि सर आया है and he is coming with his friends over here. Okay. And every time he will have the prawn patia over here. And mane, he wants me to sit with him. Okay. The whole time he is having food, he wants me to sit with him. So that touches me a lot, you know, कि Okay. इतनी बड़ी हस्ती मेरे को बैठा के, and we've clicked pictures, he's written beautiful autographs for us. Okay. जो है आपके आसपास, आपके शहर का खास, वो दिखाएगा आपको DNN 24, आपका अपना डिजिटल न्यूज नेटवर्क। तो फिर कीजिए लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो।